So आज हम UDF will learn some string functions. Then we'll see how we can create our own function in SQL Server to use that, right? So let's get started with first the substring. Substring is a string function and it works on string value. यदि हम एक certain part यदि किसी string का चाहिए, so in that case we'll use substring. Then हमें कौन सा path चाहिए, then this will return you accordingly. So let me just show you how this works. I'll just remove the full screen from here. I'll go to SQL Server and here I'll just create a new query. SQL के अंदर यदि हमें किसी फंक्शन का आउटपुट देखना है, then even we can just use the select query and then even we can just see how that function works. So here I'm just going to use select, then I'll say substring, right? Select, and then I'll say substring, right? And see substring, and then I'll just say word, and I'll say one of two. Let's see how this works. अब इसको हम रन करते हैं and we'll see that what output we are going to get from this. So see, इसने क्या किया स्टार्टिंग से, राइट? सब स्ट्रिंग मींस दैट स्टार्टिंग से हमने इसको बोला दो कैरेक्टर देने के लिए, नाउ इट इज रिटर्निंग यू द टू कैरेक्टर फ्रॉम स्टार्ट, WO. सिमिलरली यदि हम टू के जगह पे आई जस्ट से स्टार्ट फ्रॉम 3 and return two character. Let's see what we are getting. हमने 3 से इसको स्टार्ट करवाया, then we are just working here. See, लास्ट में थर्ड कैरेक्टर पे R है and here we have D. So in this way, if we'll have to get a part from a string value, in that case we can use substring. ये सारे के सारे वर्जन से RDBMS से सब में सेम तरीके से वर्क करता है, right? So let me just show you the same on real सर time. सर हाँ, डेफिनेशन ऑफ सब स्ट्रिंग। substring यहाँ पे डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है, substring part of a string based on the start position value and length value. यानी कि सबस्ट्रिंग जो फंक्शन है वो आपको रिटर्न करता है वैल्यू जो आप स्टार्टिंग पोजीशन देते हो एंड जितने लेंथ का कैरेक्टर आप बोलते हो उसको रिटर्न करने के लिए एज पर दैट इट गिव्स यू द सेम, राइट? सर लाइक सर लेफ्ट इंडेक्स सर हाँ, एक्सेल में जैसे हम लेफ्ट राइट लगाते हैं सर उसी हिसाब से। जिस तरीके से एक्सेल में आप मिड फंक्शन यूज करते हो ना, राइट? यस यस सर। उसी ओके तरीके सर। से मिड फंक्शन क्या करता है, सेंटेंस स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी स्टार्टिंग कहीं से भी पिक करके एंड देन नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करता है. सिमिलरली सब स्ट्रिंग इज आल्सो वर्किंग द सेम. इट आल्सो just extract a part of a string from as per starting position and number of character specified, right? ओके सर। So I'll just use database here. I'll just use Excel HR and I'll just run this query Excel and I'll just run this query and here we have. Now what I'll do, I'll just select all the record, select star from employee, right? And that's it. Now we are done. हमने इसको रन किया and we here will see, here we have two thing. One is, so what we have to do, ये जो जहाँ पे email ID यहाँ पे हमें दिख रहा है, right? So from email what we are going to do, we are just going to pick the 3 character from start, right? And
3 कैरेक्टर हमें पिक करना है ईमेल आईडी से. So for that what we'll do, I'll just pass here select and I'll say substring, then I'll say email, and here I'll say first starting से third character, right? I'll say 3, and I'll say part of part 1 from employees, right? And what this will do, this will extract 3 character from the email part. Here we have the value. Similarly, यदि हमें इसमें और भी columns use करना है, even we can use the all the columns here. Email, then I'll say uh, first name, and that's it. Let's see the output of this. यहाँ पे हमने सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज किया है, एंड सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके हमने ईमेल वाले पार्ट था उसमें से हमने 3 कैरेक्टर पिक किया है, एंड दैट्स इट, राइट? What we can do, even we can just use get the 3 character from first name, and दोनों को part 1 and part 2 हम यहाँ पे देख सकते हैं कि whether both are equal or not, right? कंपेयर करने के लिए ही, या फिर अदर एनालिटिकल एक्टिविटी के लिए we can just even get the part of a string from full string using substring function. Next function here we have replace. Replace string expression will come as output for a given string that after replacing all occurrences of a specified character with a specified character. Suppose यदि हमें कोई एक certain character है, सर right? सर ये सब स्ट्रिंग में थोड़ा सा डाउट मेरे को एक पूछना है। हाँ पूछिए. सर जैसे हम उसमें लेफ्ट राइट मिड लगाते हैं तो उसमें हम बीच से कई भी करेक्टर लेके आ जाते हैं, तो ये हम्म. सब स्ट्रिंग से हो सकता है सर इससे? क्या चीज? सब स्ट्रिंग से जो आपने सर आपने लिया सर, ये बीच हाँ. से मेरे को लेना है तो सर काउंट करना पड़ेगा ना सर इससे मेरे को? ये सही है, ईमेल एड्रेस है सर, इसमें से मेरे को स्ट्रिंग लेना है तो मेरे को तो काउंट करना पड़ेगा ना सर? क्या करना पड़ेगा? जैसे मेरे को इसका सर नेम लेना है ईमेल आईडी से, हाँ. लास्ट नेम, हाँ. तो सर ये जितना ईमेल आईडी है इसमें लास्ट नेम हमें निकालने के लिए इसे इसको से निकल सकता है सर? क्या चीज करना पड़ता है? See, इस सर केस में क्या कर लास्ट, सकते हो, इस केस में क्या कर सकते हो अगेन, यदि हमें इस तरीके से लास्ट नेम या फिर फर्स्ट नेम या इस तरीके से कुछ लेना है, राइट? सो इन दैट केस यस व्हाट वी कैन डू, इवन वी कैन जस्ट गेट द लेंथ ऑफ, राइट, गेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम. आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट नेम है, राइट? फर्स्ट नेम का लेंथ हम यहाँ पे पास कर देंगे, यानी कहाँ से स्टार्ट इसको करवाना है. सपोज हमें इसमें से लास्ट नेम चाहिए, अच्छा राइट? सर, वो एक्सेल एक्सेल वाला जो फार्मूला लगाते हैं वहीं यहाँ पे लगा देंगे? अरे क्यों, इसमें हमारे पास एक लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ, राइट? तो हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे पास कर दिया, राइट? एंड एक्सेल इज डिफरेंट. इसमें वो जस्ट मैंने उसके स्ट्रिंग के लिए बताया था, बट एक्सेल इज डिफरेंट, एसक्यूएल इज डिफरेंट, राइट? इसमें जो ओके। फंक्शन है दूसरे तरीके से वर्क करता है. सो व्हाट आई डू हियर, जस्ट आई पास द फर्स्ट नेम, लेंथ निकाल लिया हमने, इसमें हमने +1 कर दिया, बिकॉज जो स्टार्ट करना है इसको हमें, ये फर्स्ट नेम का लेंथ है उसके ठीक आगे से, राइट? देन हमें कितना कैरेक्टर लेना है, तो लेंथ ले लेंगे हम, एंड देन हियर आई पास द लास्ट नेम, length of last name, and that's it, right? Now let's run this. इसको रन करेंगे तो फिर आपका जो लास्ट नेम है ना ईमेल में से, वो निकल के आ जाएगा, राइट? हमने क्या किया, प्लस फर्स्ट नेम का लेंथ था ST1 प्लस, ओके, यहाँ पे +2 करना पड़ेगा बिकॉज डॉट भी तो है, एंड किंग, लास्ट नेम डॉट किंग, डॉट के साथ सब में यस आ रहा है सर। ना? yes, it is coming with dot. So here I'll just pass 2, and then
Let's run this. Now here we are getting the value. So ये लेंथ क्या करेगा? This will give the length of this one, right? And उसके बाद फिर डॉट भी है, एंड हमें स्टार्ट कहाँ से करवाना है? जहां से लास्ट में स्टार्ट हो रहा है. So that's why हमने यहाँ पे +2 किया है. So in this way even you can just use the help of other function, or that can be length, len and all with substring function, right? Next here we have other function, that is replace one. एंड ये सारे फंक्शन आपको उस पे भी चल रहे होंगे ऑलरेडी, दूसरे जो वर्जन है RDBMS का. इवन यू कैन जस्ट यूज दिस फंक्शन ऑन दैट टू. नेक्स्ट ईयर वी हैव रिप्लेस. यदि हमें सर्टेन स्ट्रिंग रिप्लेस करवाना है, सपोज आपके पास डेटाबेस है, डेटाबेस में डर्टी डेटा आ गया, राइट? सो इफ यू जब आपको आउटपुट चाह रहे हो देना, तो उस आउटपुट को आप चाह रहे हो कि क्लीन करके दे, राइट? सो फॉर दैट इन SQL वी हैव फंक्शन दैट इज रिप्लेस. रिप्लेस फंक्शन क्या करता है? एक सर्टेन वर्ड में से यदि हमें कुछ रिप्लेस करवाना है, देन इवन वी कैन जस्ट डू दैट. सपोज हमने यहाँ पे डाला कुमार, then I'll just pass here hyphen, then Rajesh, and that's it. अब हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है इसमें से जो वर्ड है, राइट? आई जस्ट वांटेड टू रिप्लेस द हाइफन, डबल हाइफन, राइट, विद ओनली सिंगल स्पेस, राइट? एंड दैट्स इट. नाउ लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस. रिप्लेस फंक्शन में जो हमें रिप्लेस करवाना है एंड जिसके साथ रिप्लेस करवाना है, we'll just pass this. रिप्लेस फंक्शन जब हम यूज करेंगे, देन जो आप रिप्लेस करवाओगे, जितना भी occurrence उसका होगा, everything will be replaced with new one. I'll just pass here and see. Here we are getting the value. यानी कि यहाँ पे हाइफन हाइफन करके 2 बार आ रहा था. Now what we did, हमने ये हाइफन हाइफन यहाँ पे डाला, and now just we have replaced the same with double space, and that's it, right? So replace function is also being used to clean your data. Next here we have reverse. Reverse string expression will come as output for a given string. यदि हमें कुछ reverse देखना है, कोई string है उसे हमें reverse करके देखना है, in that case we can use reverse function, right? Reverse function is something like, अब इसका कुछ ऐसा यूज नहीं है स्पेसिफिक, बट इवन just we are doing, but we are just using this function to just get the reverse value. Select, then I'll say reverse, and I'll just pass here a string A, B, C, D, E, and that's it. And now this will reverse this. Sometime what happens, ये हमें सबसे लास्ट वाला जो है पहले आ गया एंड पहले वाला लास्ट में चला गया. समटाइम व्हाट हैपेंस, आपके पास जो नंबरिंग है उसको या फिर कुछ नेम्स हैं उसको हमें रिवर्स करके देखना होता है, या कोई कोड है आप बना रहे हो, एंड द डिकोडिंग इज टू जस्ट रिवर्स दैट. सो फॉर दैट इवन वी आर यूजिंग दिस फंक्शन. बट ऐसा स्पेसिफिक यूज नहीं है इसका, उतना ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं इस फंक्शन को. दिस फंक्शन इज ओनली फॉर जस्ट टू नो stuff, right? So suppose stuff function is a string, stuff string expression will come as output for a given string data after replacing from the starting character till the specified length with. Suppose अब stuff function कैसे work करता है? Select and then I'll say stuff here, right? हमने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर डाला. अब इस केस में क्या है कि इसे हम एक सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ पोजीशन बताएंगे, स्टार्टिंग पोजीशन बताएंगे, एंड वहां से हमें उसको कट करना है, राइट? विद नंबर ऑफ कैरेक्टर विद सर्टेन न्यू कैरेक्टर, राइट? सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई जस्ट पास हियर, आई विल से हियर मुकेश, एंड इसमें हमने बोला कि स्टार्ट करो 2 से एंड 2 कैरेक्टर को रिप्लेस कर दो विद एल के,
and that's it. Now just run this query. इसको जब हम रन करेंगे, then here we will get the output. So it has replaced, इसने स्टार्ट किया सेकेंड से एंड यू के को रिप्लेस कर दिया इसने एल के से, राइट यदि हम इसे चेंज करेंगे एल आई, नाउ लेट्स रन दिस एंड दिस विल रिप्लेस यू के विद एल आई. सो जब भी हमें इस तरीके का कोई रिक्वायरमेंट हो वेयर वी जस्ट वांटेड टू रिप्लेस द सेम with some certain position and certain number of character with new character, in that case we use a stuff function. Next here we have some date function, SQL date functions, right? So first date function is get date. Get date function gives you the सर एक मिनट सर. current. हाँ, हेलो. सर आपने वो टू टू आपने लिया सर, उसकी जगह पर मैं बाई डिफॉल्ट कुछ ऐसा ऐसा बड़ा है सर, मुकेश है कुछ बड़ा हाँ वर्ड है हाँ ऐसे. हाँ हाँ. तो हमें कुछ ऐसा हम फाइंड करते हैं सर, उसके साथ तो कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्या पोजीशन क्या? की जगह. हाँ, हम इसको बोल रहे हैं कि मुकेश है नेम, इसमें से एक सर्टेन पोजीशन से हमें डेटा को रिप्लेस करना है विद न्यू, राइट? एक सर्टेन पोजीशन से सर्टेन नंबर ऑफ हाँ कैरेक्टर. सर. सर ये हाँ तो वो एक वर्ड हो गया, अगर ये पूरा सेंटेंस में काम करेगा सर ये वाला हाँ, पूरा स्टफ. सेंटेंस में भी काम करेगा. हमने यहाँ पे डाल दिया, राइट? यहाँ पे कुछ और डाल दिया ए बी सी, यहाँ पे कुछ डाल दिया 1 2 3, राइट? सो इन दैट केस यदि सर्टेन कैरेक्टर है उसके वहां से आपको रिप्लेस करना है. सपोज हमने यहाँ पे देखा कि एक पैटर्न है, दैट इज 3 3 6 7, सेवेंथ कैरेक्टर से आपको दो कैरेक्टर, राइट? सेवेंथ कैरेक्टर से दो कैरेक्टर हमें रिप्लेस करना है, या फिर 3 कैरेक्टर रिप्लेस करना है विद सर्टेन कीवर्ड. सो इवन दिस विल वर्क. सर मेरा ये क्वेश्चन ये है कि मतलब इसमें तो हमें काउंट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा है कि हमें काउंट ना करना पड़े और कुछ फार्मूला वार्मूला कुछ लगा के और ये इसको इसमें हो फॉर्मूला जो सकता है है ना सर इस कुछ. पे नहीं चलता है, राइट? दिस इज अच्छा वही एसक्यूएल, पूछ रहा था सर राइट? मैं. हाँ, इसका इसके लिए यदि हमें करना भी होता है तो प्रोग्रामिंग करते हैं. सो फॉर दैट वी हैव स्टोर प्रोसीजर हियर, राइट? इसमें ओके हम सर, उस ओके. तरीके से नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से एक्सेल में ऑलरेडी इनबिल्ट बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं, ओके राइट? सर, ओके. उसको इससे कनेक्ट मत करो, दिस इज सम डिफरेंट थिंग्स. इसमें कुछ चीजें उसी टाइप की हैं, बट दिस इज SQL. Now let's move to date functions, right? So date function will give you select, I'll just say get date, right? Get date function will return you the current, get date कहाँ, सिलेक्ट सर, सिलेक्ट. select. So this will return you the current date and time, current system date and time, right? Get date function. Next here we have date add. सो इसमें दो चीजें हैं. डेट पार्ट, जो डेट पार्ट आपको ऐड करना है, देन नंबर एंड देन डेट. सो डेट ऐड में हमें यदि कोई सर्टेन मंथ इंक्रीज करना है, ईयर इंक्रीज करना है, या डेज इंक्रीज करना है, इवन वी कैन यूज दैट टू हियर. लेट मी जस्ट शो यू. तो हियर वी हैव दोज फंक्शंस, राइट? हमने ऑलरेडी एक्सेल एचआर को यहाँ पे यूज कर लिया है. आई जस्ट यूज दिस. Then get date function gives you the current date and time. Next here we have date add. यदि हमें certain date increase करवाना है, right? Suppose month हमें आज current date है उससे एक ज्यादा करवाना है, या फिर एक कम करवाना है करंट मंथ से. सो इन दैट केस इवन वी कैन जस्ट डू द सेम टू, राइट? हियर वी हैव मंथ हमने यहाँ पे लिया है, देन हमने 1 मंथ इंक्रीज करवाया है, देन यहाँ पे हमने 1 मंथ कम करवाया है. हियर वी आर जस्ट डिक्रीजिंग 1 ईयर, देन हियर वी आर जस्ट इंक्रीजिंग 1 डे. यानी ये सारे के सारे यदि हम रन करेंगे, देन हियर वी हैव द आउटपुट ऑफ ऑल.
डेट ऐड फंक्शन का आउटपुट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। सो हियर वी हैव द डेट ऐड मंथ, हमने 1 मंथ इंक्रीज करवाया है। सो हियर वी हैव द 3 मंथ, आज 20 है एंड सेकेंड मंथ का। सो हियर वी हैव 20। हमने 1 मंथ माइनस करवाया है, नाउ दिस इज जनवरी। इसमें हमने वन वन ईयर माइनस करवाया है, सो हियर वी हैव ईयर 2023। इसमें हमने 1 डे इंक्रीज करवाया है, so in that case here we have date 21. So date add part just help you to increase, decrease any date part, that can be month, year or day। इन तीनों में से कोई भी डेट पार्ट यदि आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, राइट, इन दैट केस यू कैन जस्ट यूज डेट एड फंक्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज डेट, एंड देन यू कैन सी दैट what is the date or date what is the date after just adding certain month or certain year or certain day, राइट। यहाँ पे हमने एग्जांपल में 1 लिया था, बट आप जितना चाहो उतना यहाँ पे ले सकते हो, यू आर फ्री, बट दिस शुड बी ऑलवेज नंबर। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट पास नहीं करेंगे सेकेंड वाले पार्ट पे। फर्स्ट वुड बी द डेट पार्ट, राइट, सेकेंड वुड बी द न्यूमेरिक एंड थर्ड वुड बी डेट। यानी जिस डेट से हमें सर्टेन नंबर ऑफ जो डेट पार्ट है इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, we'll use that here, right? Next here we have date diff, right? So here we have the data, right? इसमें हमारे पास हायर डेट है, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका हायरिंग डेट है यहाँ पे। सो व्हाट वी वांट, वी जस्ट वांट दैट उनका लास्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट, एंड वी जस्ट वांटेड टू गेट द डेट डिफरेंस, टोटल टेन्योर कितना हुआ है उनका, राइट, फ्रॉम टुडे। सो फॉर दैट हियर वील यूज डेट diff फंक्शन, कितने कितने दिन उसको हुए हैं वहां पे, कितने मंथ हुए हैं एंड कितने डेज हुए हैं टोटल, राइट। सो फॉर दैट हियर वी आर जस्ट यूजिंग डेट diff फंक्शन। So syntax of date diff function is date diff, then first date part, इसमें भी date part can be year, month and day, then start date and end date, that's it। and this will return you, जो डेट पार्ट आप यूज चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग दिस विल गिव यू द आउटपुट, राइट। आई जस्ट सेलेक्ट दिस, अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, हियर वी हैव जस्ट यूज डेट डिफ, डेट पार्ट इज ईयर, डेट हायर डेट हमने यहाँ से पिक किया है, दिस इज द हायर डेट, देन गेट डेट, एंड डेट इज टुडे, दिस इज द टोटल years, total tenure in years, here we have total tenure in months, here we have total tenure in days, right? And if once you'll run this, you'll get the output here। हमने इसको रन किया and here we have the output, hire date, total tenure in years, months and total number of, सबसे लास्ट में हमने क्या किया था, total number of days here। 365, this is also in year। Okay, so in this way even we can just use date diff function to get the date difference between two dates। Next we have date function, that is day, right? Hire day यदि हमें देखना है किस दिन ये hire हुआ है, even we can just use day function and then this will return you the hire day when this person was hired। This is 17, right? 21, this only returns the date part, right? Next, hire month, hire date and all, even we can just get these separately। यहाँ पे पूरा डेट है, बट यदि हमें इसको अलग अलग करना है, in that case even we can use day, month and year separate functions to separate these values here। Next here we have date part,
यदि डेट कोई डेट है एंड उसमें से एक पार्ट हमें पिक करना है, इन दैट केस वी यूज डेट पार्ट। सपोज हियर वी हैव द डेट एंड इसमें से हमें ईयर निकालना है, सो फॉर दैट हियर वी विल जस्ट यूज डेट पार्ट फंक्शन एंड दिस विल गिव रिटर्न यू द ईयर, राइट। जो ईयर है वो वाला पार्ट रिटर्न करता है। Even here we have other function that is year. Year is also returning the same thing, and date part is also doing the same thing. So here we are just getting the month when the employee was hired, and also the date part day when employee was hired, right? So date part month is 6 and date part year, day is 17. Similarly, we can just get the date part year also in this in separate. Next here we have convert function. So this will converts the date format in different format. In this in short month name, then day, then year, and so on, right? So convert function converts date type expression in different styles. Next we have format. यदि हमें format करना है as per this, यदि हमें weekday name चाहिए and month name and all, then in that case we'll use format function to format the date value here. सर ये कन्वर्ट वाला थोड़ा बताना सर दोबारा, ये कन्वर्ट कैसे काम करता है ये? अब हाँ इसमें हम फॉर्मेट जो करते हैं सर, फॉर्मेट टेक्स्ट वाला हाँ जो एक्सेल में, हाँ हाँ। उसी वही है सर ये कन्वर्ट? कन्वर्ट, हाँ वैसे ही वर्क करता है कन्वर्ट। सो तो ये जो सर वो इसमें varchar हम है डेट फंक्शन है, सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, वह इसका जो कन्वर्ट का डिफरेंट कीवर्ड्स है, राइट। यहाँ पे हमने 20 डाला है, कन्वर्ट 20 गेट डेट। इफ आई जस्ट चेंज दिस, इफ आई से इट्स 30, राइट। नाउ लेट्स सी द आउटपुट हियर। 6 PM एंड ऑल, पहले कितना था, when we are just using 20, then okay। कन्वर्ट सर जैसे ही शॉर्ट में ही करता है क्या, जैसे फेब्रुवरी को फेब करता है? हाँ, कन्वर्ट फंक्शन कन्वर्ट कर देता है डेट को कैरेक्टर में, राइट। सो फेब्रुवरी मंथ जो है, मंथ को इसने कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे, राइट। मंथ जो था उसको सेकेंड फेब्रुवरी बना दिया है। डेट इज ऑल सेम, बट जस्ट इट हैज कन्वर्टेड द मंथ पार्ट शॉर्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इसमें है आपका फॉर्मेट है, राइट। इसमें भी कन्वर्ट में भी आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स है, राइट। यदि उस हाँ फॉर्मेट सर का वही यूज फॉर्मेट करो, मेरे को जानना है हाँ सर, फॉर्मेट। हाँ, इसमें जो डिफरेंट कोड्स हैं इसके, सपोज यहाँ पे कोड है 109। अब हमने क्या किया यहाँ पे, आई जस्ट गो हेयर एंड देन आई जस्ट टाइप हेयर 109, राइट। दे आर डिफरेंट कोड्स। अब हम इसको यूज करेंगे, देन सी यू विल गेट दिस वन इन दिस वे, राइट। 109 की जगह पे इफ आई जस्ट यूज 1110, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। इसके कुछ कोड्स हैं, एज पर दैट सी 110 हमने डाला, देन फॉर्मेट इज दिस वन, right? And if डेट I'll just सर। type 12, then the format is this one, इसमें सारा हट गया, right? हाइफन वाइफन सर सब कुछ हटा दिया। ये कोड कहाँ मिलेगा सर, कोड ये माइक्रोसॉफ्ट होगा का ना? जो SQL का है वहां पे मिल जाएगा, इसका कोड है पूरा। देयर आर 16 और 17 टोटल कोड्स, राइट। यू कैन जस्ट गेट देयर फ्रॉम। यदि हम 108 डालते हैं, then even we will get some value here, see, ये सर 100 इसका से कोड का स्टार्ट। लिस्ट सर दे देना सर। हाँ मैं आई जस्ट सी, वो मैं शेयर कर दूंगा मैं। दिस इज नॉट सो यूजफुल, राइट। अब हमने 100 डाला, सी अगेन वी आर जस्ट गेटिंग द सेम थिंग। यदि हम यहाँ पे 7 करते हैं, देन दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सी, अब इसमें शॉर्ट मिल गया आपको, राइट। टाइम नहीं आ रहा है, ओनली दिस वन वी आर जस्ट गेटिंग। इसी तरीके से हम 5 करते हैं,
then again we'll get only this one. और 8 9 10 हमने डाल दिया, 10 भी हमने यूज कर लिया था, so we'll see. Okay, 10 में भी सेम है, 9 था सर, 1। 17, 17 is invalid, उसके 16 ही है, 15 या 16 टोटल है कोड्स. This is also not valid. Not a valid converting format. So there are some certain formats, right, that is available on site. You can just refer that. मैं शेयर कर दूंगा वो, ठीक है, जितने भी इसके कोड्स हैं. I'll just share that. So in this way it works. यदि हमें जो भी डेट का फॉर्मेट है, जिस भी डेट के फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है, right, even we can just use the convert function, and then we can just pass here the code to format the same in certain format. Similarly, next here you have the format function. फॉर्मेट फंक्शन भी एक सर्टेन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. सपोज हमने यहाँ पे गेट डेट दिया, एंड देन हियर आई एम जस्ट पासिंग द फॉर्मेट, so it has formatted the same in month and day, right, February and date to day only. हमने यहाँ पे m only डाला है, right, so that's why it is just returning us the value, right. इसी तरीके से आप d पास करोगे, then this will return you something like this. So if I just pass here d, then see what we are getting. And if I'll just pass here capital D, small d में हम इसने हमें इस तरीके से डेट दिया है, and if I'll just pass here capital D, then here we are getting the value. इसी तरीके से हम जब कैपिटल M पास करेंगे, then we would have different format here, right. जब हमने स्मॉल m पास किया था तो हमें शॉर्ट मंथ नेम मिल रहा था, right, but when we just passed here the capital M, then full month name मिला. Okay, सर ये तो करंट डेट का हो गया है, जैसे same हमें कोई है. डेट दिया हो तो उसको कैसे करेंगे? हाँ जैसे इसमें डेट हमें कोई दिया हो, उसको हमें ऐसे कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे सर? हाँ, यदि हमें ऑलरेडी डेट जो कन्वर्ट करना है, तो हायर डेट यहाँ पे पास कर दो. कुछ दिया हुआ फॉर्मेट है ऑलरेडी. सपोज हमारे पास एक हायर डेट करके है, डेट हायर, हायर डेट, हायर एंड डेट हियर फ्रॉम एम्प्लॉय. हायर डेट नहीं है क्या इसमें? अच्छा, अंडरस्कोर है, राइट. हायर डेट को हमने यहाँ पे पास किया, एंड नाउ हियर विल सी द आउटपुट. जो हायर डेट है, एम्प्लॉइज, EMPLOYEES है ना ये. सी, ये सारे हायर डेट आ गए हमारे पास इस सर फॉर्मेट ये में. तो पूरा लिस्ट आ गया, अगर इसमें से कोई एक चुनना हो तो हो सकता है सर? क्या? जैसे ये सी, तो पूरा लिस्ट आ गया सर। हाँ, बहुत ही हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग तो कोई। क्वेश्चन किए हो लियाकत. वेयर क्लोज लग जाएगा ना सर? हैं? वेयर क्लोज, यस, हियर विल जस्ट आईडी, यूज द एम्प्लॉय वेयर आईडी जो क्लॉज, भी है। राइट. तो रो के डिस्प्ले को लिमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज लगाते हैं, राइट. सो फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लिया हमने, हायर डेट लिया, एंड हम इसको बोलेंगे मंथ एंड डेट.
month, date, right, from employee, where, अब मुझे बताओ इसमें आपको क्या किसको करवाना है, कौन सा कोई एम्प्लॉय है पर्टिकुलर इसको। कोई नाम हो, कोई तो नाम याद हाँ, नहीं है अपना, कोई एक नाम। फर्स्ट नेम लाइक, राइट, वेयर फर्स्ट नेम लाइक, हम इसमें स्टार्ट कर देते हैं एस वाले को हम करते हैं, राइट, एस से स्टार्ट करते हैं, एंड आई से एनीथिंग इसके आगे हो। सो फॉर दैट हम ये यूज करते हैं, राइट। अब ये एस वाला जितना भी होगा उसको लिस्ट करेगा, एम्प्लॉयज, एंड आई जस्ट रन दिस। इसमें फर्स्ट नेम सही नहीं है क्या, फर्स्ट नेम, राइट। अब ये देखो, यस सर, फर्स्ट हो नेम गया। किया, एंड हमने इसको लिमिट कर दिया, यानी कि एस से स्टार्ट होने वाला जितने भी नेम थे उसी को हमने इस तरीके से किया है। एक्चुअली जब सेलेक्ट को स्टेटमेंट के साथ आप रन करते हो, ये फंक्शन यूज करते हो, इट मीन्स दैट आप ओनली व्यू कर रहे हो उसको, उसको सर्टेन फॉर्मेट में करके कन्वर्ट करके देन उसका आउटपुट आप ले रहे हो। एक्चुअल में वो डेटाबेस के अंदर जो इसका वैल्यू है उसमें कहीं कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, राइट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड जब हमें रो लेवल फिल्टरिंग करनी हो तो हमारे पास वेयर क्लाउज है, जिसपे कि रो लेवल पे हम उसको फिल्टर करके देन वी आर जस्ट सीइंग दैट। ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी स्टेटमेंट कुछ भी वैल्यू को चेंज नहीं करता है, राइट, इट ओनली जस्ट, ये क्या करते हैं, ओनली इट, ओनली इसका जो व्यू है उसको बस चेंज करके हमें आउटपुट रिटर्न करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट हियर वी हैव यूजर डिफाइंड फंक्शन। यदि एसक्यूएल के अंदर कोई फंक्शन है, राइट, कुछ हमें एक्टिविटी है यदि हमें करना है एंड दैट इज नॉट अवेलेबल इन एसक्यूएल इटसेल्फ, देन इन एसक्यूएल वी हैव ऑप्शन टू क्रिएट आवर ओन फंक्शन, राइट, एंड उस फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं एनीवेयर, राइट। सपोज I have to create a function for sum, yeah, for average, right? So in that case, even I can just use the SQL function. SQL here I can just create my own function. Suppose I'm just going to create uh, Excel sum. I'll say Excel and then I'll say sum. हमने जब भी SQL के अंदर कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम एट द रेट के साथ एंड देन एक कैरेक्टर असाइन कर देते हैं, देन हियर वी आर जस्ट पासिंग द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। सो हमने यहाँ पे, सो सिंटेक्स इज क्रिएट फंक्शन देन नेम ऑफ फंक्शन, एंड इसके अंदर जो पैरामीटर्स है हियर वी आर जस्ट पासिंग दैट। पैरामीटर में हमने एट द रेट ऑफ 8 लिया है, इट मीन्स दैट दिस इज अ वेरिएबल, integer type variable, and second variable is b, that is also integer type, and ये जो function return करेगा that will return a integer value also। now जब हमने इतना स्टेटमेंट लिख लिया, then here we'll just use as, then begin, and यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे एक और वेरिएबल, that is c, right, one more variable here we have declared, that is c। अब इस c में हम जो a and b जो यूजर पास करेगा वैल्यू, उसका वैल्यू हम स्टोर करेंगे। सो जब न्यू वेरिएबल है, here we are just setting that set at the rate of c is equal to a plus b, and then लास्ट में हम ये रिटर्न करवा रहे हैं c, राइट। सो दिस वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम रन करते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन में दो इनपुट ले रहे हैं यूजर से, दो इनपुट लेने के बाद हम एक आउटपुट उसको दे देंगे इंटीजर टाइप। एंड नाउ इसमें जो फंक्शन हमने करवाया है दैट इज सिंपल एडिशन वन। आई जस्ट रन दिस क्वेरी एंड नाउ फंक्शन इज क्रिएटेड
I'll just access this function with select then excel dbo dot excel sum. Excel sum. Here we have the value. अब जब इसको हम रन करेंगे then this will give you the output. दोनों का सम आपको दे देगा ये रिटर्न. Here we are getting the output of 10 ये into 5. डीबीओ क्या है? DBO is the जो जब भी हम फंक्शन को एक्सेस करते हैं then this is something जहाँ पे ये स्टोर होता है. All the functions are stored in डेटाबेस DBO ऑब्जेक्ट file. ये फिक्स रहता है क्या सर? हाँ ये फिक्स रहता है. जस्ट लाइक एज आप ऑब्जेक्ट. आपको जैसे MySQL में यदि करते हो तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज वी आर डूइंग इन InnoDB फंक्शन राइट. ये डीबीओ जो है ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है क्या? हाँ एक ऑब्जेक्ट ही है सर ये. सर एक बार और समझा दीजिए सर, मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है एक क्रिएट करते हैं फंक्शन देन वील जस्ट डू. अब सपोज हमने क्या किया इसको हटा दिया DBO को राइट एंड जस्ट ट्राइंग टू रन दिस. सी अब ये क्या है कि इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है. सो DBO इज अ प्लेस होल्डर वेयर ऑल द फंक्शंस आर स्टोर्ड राइट. if I'll just add here DBO keyword right then see जितने भी फंक्शन हैं आपके यहीं पे अवेलेबल हैं. all the functions are available under DBO library and इसको जब हम रन करेंगे then this will give you the output. अब ऊपर से हम एक रन देखते हैं फंक्शन. सपोज हमने क्या किया हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है राइट. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. हाँ सर एट द रेट जो है सर, इसको इसका मतलब यहाँ पे क्या है सर? कहाँ पे. ये सेट लिखे हैं सर, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा ये वाला यस सर। एट द रेट ऑफ सी का मतलब है कि ये सी टाइप का एक वेरिएबल है. सॉरी इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है सी. जब भी SQL के अंदर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम एट द रेट ऑफ साइन से डिनोट करते हैं. एट द रेट ऑफ सी एंड इसका डेटा टाइप है इंटीजर वेरिएबल. और इसी वेरिएबल में हमने जो यूजर से हम ए एंड बी वैल्यू ले रहे हैं इस फंक्शन के लिए राइट वो यस सर। उसका आउटपुट उसको हम सेट कर रहे हैं. इसके आउटपुट को ए प्लस बी को हम इसमें इसके अंदर डाल रहे हैं सी में एंड देन हियर वी आर जस्ट रिटर्निंग द सी राइट. जब इसको रन होगा ओके तो सर। सबसे पहले क्या करेगा ये ए का वैल्यू यहाँ पे 10 है बी का वैल्यू 5 है देन दिस विल गो हियर सी ए प्लस बी को ऐड करके सी में चला गया एंड देन इट इज रिटर्निंग लास्ट सी एंड दैट्स व्हाई हियर वी आर गेटिंग आउटपुट एज 15. जो ऑपरेशन यहाँ पे करोगे उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा. सपोज यदि हमें प्लस के जगह पे हम इसको माइनस कर देते हैं राइट सो इन दैट केस ऑल्सो ये उसी तरीके से आउटपुट आपको रिटर्न करेगा राइट. अब सपोज हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया यहाँ पे. आई जस्ट यूज द सेम मेथड राइट. आई जस्ट से create function right and this time I'll say excel minus excel function right and इसमें हम फिर अगेन जब भी हम इसके अंदर कोई पैरामीटर यूजर से लेने के लिए डालेंगे then here we'll have to declare the data type also. So for that here I'll declare a integer. इंटीजर के जगह पे व्हाट विल डू हम यहाँ पे कंकैटिनेट करके लेते हैं राइट. दो स्ट्रिंग लेंगे यूजर से एंड देन वील जस्ट ज्वाइन दैट राइट. सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू यूज a and I'll say it is वेरकर. yes. So here we'll just get this varchar. सर साइज भी तो पास करना पड़ेगा ना? यहाँ पे हम इसका साइज पास कर शायद सकते नहीं हैं. जाएगा सर, शायद नहीं जाएगा. मैक्सिमम साइज कर देते हैं एंड b at the rate of b and I'll say it is integer type right. दो चीजें हम ले रहे हैं इसमें. एक तो ले रहे हैं string value second we are just going to take here a integer या फिर इसे भी हम string ही ले लेते हैं
and I'll say varchar, and I'll pass this 20, right? सर And I'll say here return varchar, right? एंड इसमें हम varchar में साइज दे देंगे 30 मैक्सिमम. expecting id. Return varchar. Then here I'll just say as, then begin. Let me see कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. Then एज बिगेन डिक्लेयर ये सब फिक्स है क्या? हाँ, ये इसका कीवर्ड है, राइट? और इस बात तरीके है से. हाँ सर, अगर हम लोग ये नहीं लगाए बिगेन तो एरर देगा? हाँ, ये एरर देगा. सो ये इसको पता नहीं होगा कहाँ से स्टार्ट करना है इसको, राइट? यहाँ पे हमने ये फंक्शन का नेम लिखा, उसके बाद हम एज लिखते हैं, देन वी जस्ट पास हियर द कहाँ से इसको फंक्शन में, यानी कि कहाँ से इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट? सो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्रिएट one more variable here, and I'll see at the rate of c equal as c, and here I'll say this as varchar, and इसका भी हम साइज 30 दे देते हैं. Then I'll say set at the rate of c is equal to concat concat at the rate of a, then I'll just say hyphen, then at the rate b, return at the rate c, and then I'll say end. begin जब होगा तो इसे हमें end भी करना होगा, right? let me just run this, देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. return, so इनका रिटर्न गलत है सर. है. रिटर्न की स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग सही है. नीचे है सर, नीचे वाला. RE, हाँ. procedure excel function line 1 batch start line, incorrect syntax near the keyword return. So what is this? Even this will give, giving the error. सर ये फंक्शन केवल नहीं उसके नहीं, लिए सर, न्यूमेरिक के लिए है. नो नो नो, हम इसमें वो भी कर सकते हैं. Even we can just create
हम इसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, राइट? सो वाइल्ड कैर, देन आई से 30 ईयर, तभी तो इसमें स्टोर करेगा। ओके, लाइन प्रोसीजर, कीवर्ड incorrect syntax near the keyword edge, return return सर एक ब्रैकेट रह गया। नहीं ठीक है। this is something that हम्म। प्रॉब्लम तो है इसमें। ओके, विल सी एक दैट कहाँ ब्रैकेट पे रह गया इसमें सर। प्रॉब्लम। वेर करके बाद में आपने एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया। सर मेरे कुछ डाउट है पर छोटे मोटे है सर इसमें। पिछले वाले क्लास का सर। देखते हैं उसको भी, आपके डाउट को भी, राइट? सो रिटर्न इट इज नॉट रनिंग। छोटे मोटे हैं सर बस हाँ हाँ ठीक है। कैपिटल ऐसे तो कुछ नहीं होता है, सी। ओके, so we'll see that, right? So but syntax of creating function is same here. Create function, then name of function, then here we are just passing the return type, and then this works. And इसको जब हमें access करना होता है SQL में, then we use dvo function, right? ये तो आपका scalar function था जो कि एक certain उस पे work कर रहा था, but even we can just create the table valued function also, right? Suppose यदि टेबल है and उसमें से हमें डेटा को पिक करना है using function, then even we can do that, right? So suppose here we have अब टेबल, एंड उसमें से हम चाहते हैं कि जब एक डिपार्टमेंट का जो नेम है या डिपार्टमेंट आईडी है उसके बेसिस पे मैं वैल्यू को पिक करूं, राइट? सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी हियर वी कैन जस्ट क्रिएट अ टेबल वैल्यूड फंक्शन एंड we'll use here same keyword, create function, then get employee, right? यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया get emp, then at the data department, and यहाँ पे where हमने इसका डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, right? Then I'll say it will return the table as return। यहाँ से हम इसे रिटर्न टाइप ले रहे हैं टेबल, डायरेक्ट हम टेबल के अंदर ये वैल्यू पास करेंगे एंड देन here we'll get the output, right? Returns table as return select star from employee where department id is equal to, यानी कि this is something variable one, right? इस टेबल के अंदर हम पूरा क्वेरी हमने पास कर दिया है। now if you just run this, right? if I just run this query, तो हमें टेबल में जितने भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे दिख जाएगा। देन एक सर्टेन डिपार्टमेंट है उससे हमें उसका हमें सिर्फ डेटा चाहिए, तो इन दैट केस we'll just pass here 10, एंड बिकॉज हमने वेयर क्लॉज के अंदर ये पास किया हुआ है डिपार्टमेंट आईडी, सो हियर विल ओनली सी द डेटा फॉर दैट सर्टेन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 10 का। अभी हमने हमें 9 का देखना है, देन हियर आई जस्ट पास 9 एंड दिस विल गिव यू the data only for 9। so in this way even we can just create टेबल वैल्यूड फंक्शन, राइट? एंड उस केस में आपका ये पूरा पूरा टेबल रिटर्न करेगा, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो दिस इज एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हमने जो वेरिएबल यहाँ पे यूजर्स इनपुट ले रहे हैं, वी आर जस्ट पासिंग दैट एज इक्वल टू, एंड दैट्स इट, राइट? सो इन दिस वे इट वर्क्स, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे।